Hello students, welcome to the class 4th subject English. Let's start Unit 3 Birthday Gift Board. So students, in this chapter we are going to talk about birthday gift. We all celebrate our birthday. So on our birthday our friends and our parents give us gift. Now let's see activity 1. In this activity, one picture is given and from this picture some questions are also given here. So we have to write the answers of these questions from given picture. Okay, now let's see. First question is, how many trees do you find in this picture? So students, can you find? So here 4 trees are there. Now second question is, how many birds are there in this picture? So in this picture there are 3 birds. Now the last third question is, what is the color of the boat? So students, which color of this boat? Here you can write blue, otherwise purple. Now here we have completed activity 1. Now let's start activity 2, birthday gift. First of all, we will see here some keywords are given. First, to be excited means to become eager or happy. Second, ripples means small waves or series of waves on the surface of water. Third, to rush means to move quickly. Now the fourth one is stream. Stream means a small river. Okay students, now let's start. Jia's father gave her a little boat as a birthday gift. It was a beautiful red boat with a milk white sail. Jia wound it up and it sailed in the big bathtub filled with water. So students, in this story the girl name is Jia. Jia's father gave her a little boat as a birthday gift. इस स्टोरी में जो जिया नाम की लड़की है उसके बर्थडे पर उसके पापा ने उसे एक छोटी सी बोट जो नाव होती है वो उसे लाकर दी. इट वॉज अ ब्यूटीफुल रेड बोट विथ अ मिल्क वाइट सेल. ये एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की छोटी सी बोट थी जिसे देखकर जिया बहुत ही खुश हो गई और उसने एक पानी से भरा हुए बाथ टब में उसे तैरना शुरू किया. Jia was excited. She called her friend Dhruv and showed him the boat. It is a beautiful boat, but does it really sail? Asked Dhruv. Of course, Jia said. She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. With where the boat sat off, going round and round, creating ripples. May I sail the boat just one? Asked Dhruv. So students, Jia was so excited for her boat. Jia बहुत ही excited हो गई थी अपनी बोट देखकर, तो उसने अपने फ्रेंड ध्रुव को बुलाया अपनी बोट दिखाने के लिए. और ध्रुव ने अब उस बोट को देखकर कहा कि ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी बोट है और उसने जिया से पूछा कि क्या ये तैरती है. जिया ने उसे आंसर दिया, येस ऑफ कोर्स, ये पानी में तैरती है. एंड जिया ने उसे ये इंजन वाली बोट थी सो उसको चाबी घुमाई और उसको बाथ टब भरा जो पानी से भरा हुआ बाथ टब था उसमें बोट को रख दी. थोड़ी देर में जो बोट है वो राउंड राउंड घूमने लगी जिसकी वजह से छोटे छोटे वेव्स रिपल्स क्रिएट होने लगे. एंड ध्रुव ने उससे पूछा, मे आई सेल द बोट जस्ट वंस. ध्रुव ने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी बोट चला सकता हूँ.
No, Jia quickly replied. You will spoil my lovely boat. And Dhruv was hurt. He went home. He stopped going to Jia's house, but she did not care. Now ध्रुव ने उसे अपनी बोट चलाने के लिए उसे रिक्वेस्ट की, पर जिया ने उसे मना कर दिया और उसे कहा कि तुम मेरी बोट को ख़राब कर दोगे। ये सुनकर ध्रुव हर्ट हो गया, उसे बुरा लग गया और वो अपने घर चला गया। ही वेंट होम एंड उसने फिर जिया के घर आना बंद कर दिया। ही स्टॉप गोइंग टू जियाज हाउस। उसने जिया के घर जाना बंद कर दिया। बट शी डिड नॉट केयर, पर जिया को इससे कोई फिक्र नहीं थी। शी हैड हर लिटल रेड बोट टू प्ले विद, क्योंकि जिया के पास अब खेलने के लिए उसकी छोटी सी रेड बोट आ गई थी। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम नियर द बाथटब। वो अपना ज़्यादातर टाइम अब बाथटब के पास ही गुजारती थी। शी वॉच द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी। अपनी जो बोट है उसको पानी में तैरते हुए वो देखती रहती थी और खुश होती रहती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर्ड। थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जिया है अब बोर होने लगी। इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हर सेल्फ। अब उसे जो बोट है उसे खेलने के मज़ा उसे नहीं आती थी। अब वो एक ही तरह की गेम की वजह से वो बोर होने लगी थी। सी विश्ड ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन। और वो अब चाहती थी कि ध्रुव वापस से उसके साथ खेलने के लिए आ जाए। मीन्स अब जो जिया है वो एक ही तरह की गेम खेलकर, अपनी बोट के साथ खेलकर, उसे देखकर अब वो बोर होने लगी थी। तो अब उसे ध्रुव की याद आ गई एंड शी मिस्ड हिम। One day Zia was sitting by the window. Her mother had shut the window because it was raining. एक दिन जिया विंडो के पास बैठी हुई थी और उसकी मम्मा ने आकर विंडो बंद कर दी। बिकॉज बारिश होने की वजह से उसकी मम्मा ने विंडो बंद कर दी। Pitter patter, the rain fell on the closed window. Then Zia heard a song. और जो बारिश के पानी की वजह से क्लोज विंडो के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही थी तो उससे पिटर पैटर आवाज़ हो रही थी। एंड देन जिया हर्ड अ सॉन्ग, और तभी जिया ने एक सॉन्ग सुनाई दिया जिया को। कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे। जिया ने इस तरह के सॉन्ग उसको सुनाई दिया कि आओ बच्चों, अपनी बोट्स लेकर आओ, खेलने के लिए आओ बाहर, और मैं तुम्हारी बोट को बहुत दूर दूर तक ले जाऊंगा। इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन। और ये गाना कौन गा रहा था? विंड। विंड जो है बच्चों को अपनी ओर बुला रहा था और ये जिया को सॉन्ग सुनाई दिया। In a little while the rain stopped. Jia looked out of the window. और थोड़ी देर के बाद जो बारिश है वो स्टॉप होने लगी तो जिया ने विंडो से बाहर देखा। All the children had rushed out to put their paper boats in a stream by the road. उसने विंडो से बाहर देखा कि कुछ बच्चे हैं अपनी पेपर बोट्स बनाकर बाहर आ गए थे और पानी के जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स बने हुए थे रोड पे, तो उसमें वो अपनी पेपर बोट्स रखकर खेल रहे थे। देयर वेर पिंक बोट्स एंड वाइट बोट्स, बिग बोट्स एंड लिटल बोट्स। सो यहाँ पे कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपनी पेपर बोट्स बना के लाए थे। तो कुछ बोट्स पिंक कलर की थी, वाइट कलर की थी, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट कलर्स की बोट्स दिखाई दे रही थी। कुछ बोट्स थी वो बड़ी थी, कुछ थी वो छोटी थी, स्मॉल एंड बिग। दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स। और छोटी छोटी जो बोट्स थी वो पानी में वेव्स हो रहे थे उसमें वो जा रही थी।
The weak boats overturned and sank while the strong ones sailed on. और जो पेपर की बनी हुई जो बोट्स थी तो कुछ वीक बोट्स थी तो वो पानी में गीली हो जाने की वजह से टूट गई, फ्लोट हो गई, और कुछ जो स्ट्रॉन्ग पेपर वाली बोट थी वो पानी में तैर रही थी. आई विल टेक माई बोट टू थॉट जिया. जिया ने सोचा मैं भी अपनी बोट लेकर जाती हूँ. शी वॉश्ड हर बोट, इट बिकम ब्राइट एंड शाइनी. जिया ने अपनी बोट को वॉश किया और वो बाहर लेके गई. उसकी बोट ब्राइट और शाइनी दिख रही थी. She went up to the stream. She wound the key and carefully put the boat in the water. Wound means wind, past form of wind. Okay, students. So, जिया ने अपनी बोट की चाबी घुमाई और उसे पानी में केयरफुली उसे रख दिया. Where it went quickly, और वो पानी में उसकी बोट अच्छे से घूमने लगी. It left all the paper boats behind. और उसकी जो इंजन वाली बोट थी जिसकी वजह से वो उस बोट ने सारी पेपर बोट्स को पीछे रख दिया और वो आगे निकल गई. She looked proudly at the other children. Look at my boat, she clapped. और वो प्राउड उसे फील होने लगा क्योंकि उसकी बोट अच्छी वाली बोट थी और वो क्लैप कर कर सब बच्चों को कह रही थी कि मेरी बोट की ओर देखो किस तरह से जा रही है. Suddenly a piece of wood banged into Jia's boat and it broke into pieces. Now जो जिया है उसकी जो बोट है वो सडनली एक लकड़ी के टुकड़े के साथ जाकर टकराई और जिसकी वजह से उसकी बोट है वो ब्रेक हो गई. एंड शी सैट डाउन एंड क्राई. और वो वहाँ पर बैठकर रोने लगी. अपनी बोट को टूटा फूटा देखकर वो रोने लगी. डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट. पीछे से उसके एक आवाज़ आई कि कोई बात नहीं, तुम मेरी बोट के साथ खेल सकती हो. शी लुक्ड अप. उसने ऊपर देखा. ध्रुव वॉज होल्डिंग अ रेड बोट इन हीज हैंड. तो ध्रुव वहाँ पर एक रेड बोट लेकर अपने हाथ में खड़ा हुआ था. इट वॉज जस्ट लाइक जिया's बोट. और वो बिल्कुल जिया की बोट की तरह ही दिख रही थी. पापा बोट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन. और ध्रुव ने बताया कि मेरे पापा ने मेरे लिए ये बोट खरीद कर लाए हैं. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या पता चला कि जो ध्रुव है उसको जिया ने अपना टॉय से बोट से खेलने नहीं दिया था. इसलिए जो ध्रुव है उसने भी अपने पापा से जिद की होगी कि मुझे भी जिया की तरह बोट चाहिए, तो उसके पापा ने उसे बोट ला के दी थी. नाउ कम लेट अस सेल इट इन द बाथटब, जिया स्माइल. अब जिया और जो ध्रुव है वो बाथटब में अपनी बोट को रखकर खेल रहे थे. नाउ दे वेर फ्रेंड्स अगेन. और अब दोनों वापस से अच्छे से फ्रेंड्स बन चुके थे. सो स्टूडेंट्स, what we learn from this story? We learn that we must share our things, our toys with our friends. हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. टॉयज़ है एंड एक्स्ट्रा अदर थिंग्स वी हैव टू शेयर इट. हमें उनके साथ शेयर करनी चाहिए. यहाँ पे जो जिया है उसने अपनी बोट ध्रुव को नहीं दी थी, बट ध्रुव ने अपनी बोट जिया को खेलने के लिए दी. तो हमें इस लेसन से यह एडवाइस मिलती है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव quarrels and fight with our friends, but we should learn to forget and forgive them. Now students, if you have a boat like Jia's boat and keep it in the bathtub, so you can also bring the boat like this and enjoy playing with the boat.